guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to learn about purification of DNA from living cells. This is part 2 of gene cloning. As we know that to manipulate a gene, to make a clone of a particular gene or a segment of DNA, we need to purify the DNA from a particular cell, like from bacterial cell, from plasmid cell, or from bacteriophage. So here in this particular video I am going to discuss all the three. That means how we will extract the DNA from bacteria cell and plasmid and bacteriophage, and these are the steps in a particular topic. Means in a particular topic, like if I'm going to prepare for bacterial culture, or I'm going to extract the bacterial DNA, I need to grow it and harvest it. Then I will prepare a cell extract, then I will purify the DNA from cell extract, then I will check the concentration, how much DNA it consists, then I will measure the concentration of DNA, either it is enough to conduct the experiment or not. Then what are the other method to prepare the total cell DNA from bacterial cell? These are the point that I'm going to include in bacterial purification. And in plasmid purification we will discuss how does we will separate the plasmid DNA from bacterial DNA on the basis of size, because we know that in case of bacteria, plasmids lie outside the bacterial chromosome. So when we will separate the plasmid DNA, then there will be some impurities of bacterial DNA as well. So we need to separate plasmid DNA from bacterial DNA based on the size and on the conformation. Conformation means either it is double stranded, single stranded, coiled, or not, linear. Based on this conformation we will separate it from bacterial DNA. And there are two methods for this conformational separation: alkaline denaturation and ethidium bromide cesium chloride density gradient centrifugation. And then we will amplify our plasmid DNA, because it will be very small and very less to manipulate it or to proceed it further in the experiment. Then when I will discuss about preparation of bacteriophage DNA, we will learn how to grow this bacteriophage as it infect the bacteria. So only after infecting the bacteria we can extract the DNA of bacteriophage. And how we will prepare the non-lysogenic lambda phase, and how do we collect the phase from an infected culture, and how we will purify it, and what is the purification M13 DNA, and how it created the problem during purification, because it is an example of bacteriophage. So these are the points which we are going to discuss in this particular video. So I'm sorry guys, this is gonna a lengthy video, and hope you want to study and want to learn all the points in this particular video. So if you want to, then stay tuned with me, and if you do like it, then after watching the video please thumbs up and comment in the comment section given below. And if you have any query, then also comment in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video. यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए। तो टोटल सेल डीएनए का मतलब क्या है हमारा, वो देखते हैं। टोटल सेल डीएनए का मतलब है कोई भी मैंने सेल ले ली, प्लांट बैक्टीरिया सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल में से कोई भी सेल ले ली, तो उसका जो जीनोमिक डीएनए होगा उसको एक्सट्रैक्ट करना। अगर मैंने बैक्टीरिया लिया है तो बैक्टीरिया में हमारा क्या होता है, प्लाज्मिड भी लाई करता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, जो उसकी खुद से रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी हो। तो यहाँ पे जब मैं डीएनए बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करूँगी तो प्लाज्मिड का डीएनए भी साथ में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जीनोमिक डीएनए का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल के अंदर। हैप्लॉइड सेल क्या होती है, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो, जितने ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम है उसका हाफ नंबर यहाँ पे प्रेजेंट हो। हैप्लॉइड सेल में जितना डीएनए होगा उसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो जो 23 पेयर्स होंगे वो हैप्लॉइड सेल्स में प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम टोटल सेल डीएनए की। तो सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे। कल्चर करने के लिए एक मीडिया चाहिए हमें, उसको ग्रो करवाएंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, सेल जो बैक्टीरिया की सेल होगी उसको मैकेनिकल और फिजिकल मेथड के थ्रू तोड़ेंगे ताकि उसके अंदर का जो मटेरियल है, मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड में भी हमारा क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, डीएनए चाहिए, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस सेल एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट द डीएनए। अब इसको हम साइज के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीएनए को, कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पे कुछ एंजाइम के साथ ट्रीट करवा के जो प्रोटीन को तोड़ता हो, आरएनए को तोड़ता हो पर डीएनए को ना तोड़ता हो, तो इनको तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जब सस्पेंशन मीडियम में आ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे, तो इनको तो हम सस्पेंशन मीडियम में बाहर एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब डिस्कार्ड कर देंगे, और जो नीचे पैलेट बच जाएगी वो डीएनए की बच जाएगी, तो उससे हम उसको सेपरेट कर लेंगे। फिर जो लास्ट में हमें डीएनए मिलेगा उसको हम चेक करेंगे कि वो डाइल्यूट है या फिर वो कंसनट्रेटेड। अगर वो कंसनट्रेटेड नहीं है तो उसको कंसनट्रेट करेंगे और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। आगे समझते हैं, जैसे मैंने बोला कि डीएनए को मेरे को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा, तो हम एक मीडियम यूज़ करेंगे, लिक्विड मीडियम, जिसको ब्रोथ कल्चर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है हमारा डिफाइंड मीडियम और नॉन मीडियम। इसका एग्जाम्पल है M9। इसको इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन मीडियम क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट यहाँ पे नॉन क्वांटिटी में होते हैं, नॉन रेशो में होते हैं। मेरे को पता होगा कि मैंने उस मीडियम में कितना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स भी होंगे, शुगर भी होगी, ग्लूकोज भी होगा। ठीक है, सारे मटेरियल होंगे जो भी हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, और यहाँ पे उसकी देख सकते हैं मीडियम की कितनी, मीडियम के अंदर उनकी अमाउंट कितनी है। अब जो अनडिफाइंड और अननोन मीडिया होता है उसमें हमें ये तो पता है कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे ट्रिप्टोन और ईस्ट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। जो ट्रिप्टोन है वो हमारे अमाइनो एसिड और पेप्टाइड की कमी पूरा करता है जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए, और ईस्ट एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। और कुछ और भी अगर बैक्टीरिया को चाहिए, जैसे सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को जो रेशो है या इनकी कंसनट्रेशन है वो पता नहीं होती, जब इसलिए इसको अननोन मीडिया बोलते हैं। और जब हम कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी में, प्रेशर पे जब हम ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया को, उस टाइम पे मैं M9 का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करवा रही हूँ। अदरवाइज हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारे LB मीडियम का, जो कि हमारा लूरिया बर्टानी है। यहाँ पे हम जितने भी बैक्टीरिया लेके चलते हैं वो सारे हमारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, ई कोलाई होते हैं, और ई कोलाई का जो डिवीजन का टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। ठीक है, तो वो जब कल्चर जो मीडिया है, जब वो कल्चर मीडिया भर जाएगा, कॉलोनीज बहुत हो जाएंगी, मैक्सिमम डेंसिटी जब पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम डेंसिटी तब पहुंचेगी तब हमारी ऑलमोस्ट कितनी सेल होनी चाहिए, 2 to 3 × 10⁻⁹ सेल्स पर ml होनी चाहिए। इतनी सेल्स अगर हैं हमारे पास, किसकी, ई कोलाई की, अगर हमारे कल्चर में अगर प्लेट पे अगर इतनी सेल्स आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कल्चर मीडिया हमारा फुल्ली ग्रो कर गया है। तो जो ग्रोथ होती है ना यहाँ पे कल्चर मीडिया की, वो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू मेज़र की जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो यहाँ पे जो मेज़र की जाती है वो 600 नैनोमीटर पे मेज़र की जाती है। और इस 600 नैनोमीटर पे जो वेवलेंथ होगी वन ऑप्टिकल डेंसिटी की, वो किसके कोरस्पेंड होगी, मतलब वन ऑप्टिकल डेंसिटी कब होगी, जब हमारे मीडियम में 0.8 × 10⁻⁹ सेल्स प्रेजेंट होंगी 1 ml के अंदर, तब हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी 1 होगी। इसके बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन होगी, कितनी सेल्स हैं हमारी बैक्टीरिया के बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है, वन ऑप्टिकल डेंसिटी यूनिट का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अब कोई भी लाइट देगी यहाँ पे, जैसे 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट देगी, तो वो इंसिडेंट लाइट वो गिर रही है किस पे, हमारा यहाँ पे क्यूवेट में क्या होगा, हमारा मटेरियल होगा, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो वहाँ पे उससे लाइट दी जाएगी। वो कितनी लाइट को ट्रांसमिट कर पा रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट कितने कर पा रहा है, तो जितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है डिवाइड बाय जितनी लाइट हमारी, जिस इंटेंसिटी की लाइट हमारी इंसिडेंट हुई थी, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी आ जाएगी। और ये हमें क्या बताती है कि कितनी सेल्स प्रेजेंट थी कल्चर में।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे परफॉर्म किया जाता है। जो सेल नंबर है वो किसके कोरस्पॉन्ड होगा, ओडी के, क्योंकि मैंने बताया कि 1 ओडी किसके इक्वल है 0.8 इंटू 10⁹ सेल्स पर ml। तो एक ऑप्टिकल डेंसिटी आई तो इतनी, 2 होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऑप्टिकल डेंसिटी आ गई तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, कितने ml है और कितनी सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, सेल नंबर, जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी आ जाएगी हमारी 600 नैनोमीटर पे 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, 4 कितनी आई है, सेल नंबर हमारा कितना है पर ml पे, और उसके थ्रू हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। फिर हम हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग जो है वो स्पिनिंग के थ्रू की जाती है। स्पिनिंग मतलब हम उसको रोटेट करवाएंगे सेंट्रीफ्यूज रोटर पे, और ये हमारा यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है, मतलब जो कल्चर मीडिया है, वो यहाँ पे स्पिन करना चाहिए 8000 RPM रिवोल्यूशन पर टाइम पे फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद हमारी पिलेट बन जाती है बैक्टीरिया की, फिर उस पैलेट को हम रिमूव करते हैं। फिर उस जो पैलेट आती है बैक्टीरिया की, फिर उसके ऊपर हम केमिकल जो मेथड अप्लाई करते हैं ताकि उसके अंदर से DNA को निकाल सकें। एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने का मतलब है कि बैक्टीरिया की जो सेल है उससे DNA को कैसे निकाला जाएगा। बैक्टीरिया की सेल क्या है, सेल 3 इन्वेलप होते हैं। एक आउटर होती है हमारी सेल, इनर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर होता है ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में, और बीच में होता है हमारी सेल वॉल, ये होता है सेल इन्वेलप बैक्टीरिया के केस में। तो हमें दोनों ही मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे, मैकेनिकल फोर्स भी और केमिकल मेथड दोनों ही अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फिजिकल मेथड होता है उसमें मैकेनिकल फोर्स आ जाता है, वर्टेक्स वगैरह यूज़ करते हैं हम उसको। केमिकल मेथड में जहाँ पे लाइसिस किया जाता है केमिकल एजेंट्स के थ्रू, उसको एक्सपोज करके सेल को, ताकि जो सेल की इंटीग्रिटी है, मतलब जो कंपोजिशन है वो टूट सके। तो यहाँ पे जो केमिकल लाइसिस है उसमें हम एक एजेंट यूज़ करते हैं जो सेल वॉल को अटैक करता है, सेल वॉल को अटैक करेगा, देख रहे हैं हम यहाँ पे सेल वॉल को अटैक कर रहा है। और दूसरा हम यूज़ करते हैं वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। और जो केमिकल यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया हम यहाँ ले रहे हैं। अगर हम ई कोलाई ले रहे हैं या ई कोलाई से रिलेटेड कोई स्पीसीज ले रहे हैं तो यहाँ पे सेल वॉल को वीक तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइसोजाइम यूज़ करते हैं, जो हमारे टीयर्स में भी होता है, सलाइवा में भी होता है, एग वाइट में भी होता है। एग वाइट में भी मिलेगा, ये हमारी टीयर्स में भी मिलेगा, ठीक है, सलाइवा में भी मिलेगा। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ देता है, ठीक है। और जो सेल की रिजिडिटी होती है, सेल वॉल की रिजिडिटी मतलब वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसको भी तोड़ देता है। और EDTA यूज़ करते हैं। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट होता है। ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम आयन को ये रिमूव करता है। और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, सेल इन्वेलप का मेजर कंपोजिशन बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो हमारा EDTA होता है वो इनहिबिट करता है सेलुलर एंजाइम्स को। सेलुलर एंजाइम्स मतलब सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करता है ताकि वो DNA को तोड़ ना पाए। कुछ कंडीशन के अंदर जो सेल वॉल की वीकनिंग है लाइसोजाइम और EDTA के थ्रू सफिशिएंट नहीं हो पाती कि भाई बैक्टीरिया की सेल जो है वो फट जाए और उसके अंदर जो DNA वो बाहर आ जाए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हम जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, एक डिटर्जेंट, और उस डिटर्जेंट का नाम है SDS, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का यूज़ करते हैं अपनी बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ के उसके DNA को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो SDS है ये लाइसिस का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है और सेल मेम्ब्रेन का डिस्रप्शन करता है। डिस्रप्शन मतलब फट जाती है। फिर फाइनल जब हमारी सेल फट गई है तो सेल एक्सट्रैक्ट निकल गया है, तो फाइनल स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल सेल डेब्रीज। तो इनसोल्यूबल सेल डेब्रीज को कैसे रिमूव करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करके। हम एक क्यूवेट में डालेंगे अपने सारे मटेरियल को और उसको सेंट्रीफ्यूज पे रोटेट करवाएंगे, तो हमारा DNA प्रोटीन अलग रह जाएगा, सेल डेब्रीज अलग रह जाएंगी। तो जो ये वाला मटेरियल इसको अलग क्यूवेट में डाल देंगे और ये जो है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे हमारा मटेरियल नीचे बैठ जाता है तो उसको पैलेट बोलते हैं। और जो ये होता है इसको सस्पेंडेड मीडियम भी बोलते हैं, सस्पेंशन भी बोलते हैं,
अब हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर हमारा डीएनए भी प्रेजेंट, आरएनए भी प्रेजेंट, प्रोटीन भी प्रेजेंट। तो ये है क्या, सेल एक्सट्रैक्ट है। तो इस सेल एक्सट्रैक्ट से हमें डीएनए चाहिए, आरएनए नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए। तो उससे हम कैसे अलग करेंगे अपने मटेरियल को, वो देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे, बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। तो जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोटीन और आरएनए से, वो है कि भी ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू और एंजाइम डाइजेशन मेथड के थ्रू हम कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करें। कॉन्टामिनेंट्स यहाँ पे क्या है, प्रोटीन एंड आरएनए है। तो जो स्टैंडर्ड वे है वो है यहाँ पे कि हम डीप्रोटीनाइज कर दें सेल एक्सट्रैक्ट को। आरएनए भी हमारा प्रोटीन से मतलब नाइट्रोजनस बेस से, सल्फर से, फॉस्फेट से मिलके बना है, और प्रोटीन भी हमारा प्रोटीनेशियस है। तो इनको हम डीप्रोटीनाइज कर देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिनोल का यूज़ करेंगे, या फिर 1:1 में हम मिक्सचर लेंगे फिनोल का एंड क्लोरोफॉर्म का। ये जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट बना देते हैं, बट जो न्यूक्लिक एसिड होगा हमारा डीएनए एंड आरएनए वो बच जाएगा। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए बच जाएगा जब इस ट्रीटमेंट को करेंगे, और प्रोटीन जो है उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं जो इनसोल्यूबल हो, तो वो सोल्यूबल नहीं होंगे, बाहर दिख जाएंगे हमें, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो लेयर बनेगी उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर देंगे उस प्रेसिपिटेट को, और उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे जो पैलेट बनेगी वो वाइट वाइट सी बनेगी, ठीक है, और उसको हम मतलब फेंक देंगे। ये है विद सम सेल एक्सट्रैक्ट, जो प्रोटीन कंटेंट है वो इतना ज़्यादा होता है कि सिंगल फिनोल एक्सट्रैक्शन सुफिशिएंट नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है बहुत सारे फिनोल एक्सट्रैक्शन करके, एक के बाद दूसरा। बट ये अनडिज़ायरेबल है क्योंकि हर बार जब मिक्स कर रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं उसकी वजह से डीएनए का कुछ पार्ट हमारा टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जब हमें बहुत बार फिनोल एक्सट्रैक्शन करना पड़े या फिर फिनोल या क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना पड़े, तो उस टाइम पे हम प्रोटीएज यूज़ करते हैं। प्रोटीएज वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है प्रोनेज या फिर प्रोटीनेज के। और ये जो एंजाइम है वो फिनोल एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, जो पॉलीपेप्टाइड होगी, पॉलीपेप्टाइड किसकी, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है, तो उसको ये तोड़ देगा। ठीक है, और हमारा फिनोल एक्सट्रैक्शन के थ्रू ईजिली हमारा जो प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल हैं स्पेशली मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, वो रिमूव किए जाते हैं फिनोल ट्रीटमेंट के थ्रू, बट कुछ रह जाते हैं डीएनए के साथ एक्वस लेयर में रह जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्वस लेयर है, डीएनए और आरएनए दोनों है, और ये फेस बन गया कोएगुलेटेड प्रोटीन का। यहाँ पे फिनोल है, ये हम यहाँ पे जो वो सेंट्रीफ्यूगेज ट्यूब होती है उसमें रख के और इसको रोटेट करवा के करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्वस मटेरियल जिसमें डीएनए आरएनए होगा, बीच में जो आएगा उसमें प्रोटीन, नीचे फिनोल रह जाएगा। तो ऐसे रहता है, अलग अलग से हमें दिखती हैं लेयर्स। तो ये जो हमारा होता है ये इफ़ेक्टिव वे है रिमूव करने का डीएनए। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिनोल के बाद भी वो हमारा एक्वस लेयर में रह रहा है। डीएनए के बाद फिनोल एक्सट्रैक्शन के बाद भी क्या रह रहा है, मैसेंजर आरएनए। तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, राइबोन्यूक्लियस के थ्रू। राइबो जो हमारे आरएनए को तोड़ दें, राइबोन्यूक्लियस वो इसको ईजिली डिग्रेड कर देंगे और ये हमारा सुपरनेट्रिएंट के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये मेथड है एक ये तो हमारा मेथड क्या था, ये मेथड था हमारा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन का या एंजाइम डाइजेशन वाला मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा यहाँ पे सेल एक्सट्रैक्ट से डीएनए के अलावा जो भी प्रेजेंट है आरएनए और प्रोटीन उसको रिमूव करने का, वो होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को सेपरेट करते हैं और अलग अलग केमिकल के साथ मिक्स करके करते हैं। इस मेथड में हम मॉलिक्यूल्स को इस बेस पे और इस प्रिंसिपल पे सेपरेट करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल प्रेजेंट है जैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट है, वो यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये कॉलम है, कॉलम में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, उस मैट्रिक्स के साथ कैसे और उस रिजाइन के साथ कितने बाउंड हैं, कितने टाइटली बाउंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए और आरएनए होते हैं दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज रिजाइन से बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन विद इमोबिलाइज्ड एनायन सरफेस,
यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज रिजाइन हमने यूज़ किया है और हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। और तो यहाँ पे बाइंड क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हमारा निकल जाएगा। क्यों क्यों निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जब भी हम इल्यूट मीडियम यहाँ पे डालेंगे वो इजिली यहाँ पे इल्यूट आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइटली बाउंड मोलिक्यूल होंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आके टाइटली बाइंड हो जाएगा। तो उस पॉजिटिव को कैसे रिमूव करेंगे, साल्ट यूज़ करके। साल्ट क्या करता है, साल्ट की कंसंट्रेशन को घटा के बढ़ा के हम अलग अलग जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको इल्यूट आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रेजुअल इल्यूजन होगा, 1 बाय 1 एक एक सब्सटेंस हमारा निकलता जाएगा और सेपरेट हो जाएगा हमारा डीएनए प्रोटीन और हमारे आरएनए से। फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन की जाती है डीएनए सैंपल की। अब जो हमें डीएनए मिला है वो देखेंगे हम, वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। अगर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन किया या प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट किया तो वो हमारा थिक सॉल्यूशन हमें मिलता है, उसकी कंसंट्रेशन सही होती है। पर अदर मेथड हमने यूज़ किया, जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ की, तो जो इल्यूट आउट हुआ है हमारा डीएनए उसकी कंसंट्रेशन कम है, वो डाइल्यूट है, तो उसको हमें कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेट करने के लिए, उसको इथेनॉल प्रेसिपिटेशन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, मोनोवेलेंट कैटाइन यूज़ करते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनो मतलब सिंगल हो जिसकी वैलेंसी। तो ऐसे कैटाइन हमारे क्या होते हैं, सोडियम होता है ऐसा कैटाइन, मोनोवेलेंट कैटाइन, तो उसका यूज़ करेंगे। और टेम्परेचर हम यहाँ पे लेंगे -20 डिग्री, और या इससे भी कम लेंगे। और यहाँ पे लेते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल या एब्सोल्यूट इथेनॉल, ठीक है। एल्कोहल इथेनॉल सेम ही है वैसे, मिथेनॉल भी एल्कोहल ही होती है, बट मिथेनॉल टॉक्सिक होती है, और जो हम कंज्यूम करते हैं वो इथेनॉल होती है, C2H5OH। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% है, तो 90% 100% कैन बी लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ द सैंपल। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन में सॉल्ट यूज़ करेंगे, मोनोवेलेंट कैटाइन यूज़ करेंगे, और -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको यूज़ करेंगे, और एब्सोल्यूट इथेनॉल का यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको इथेनॉल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो थिक सॉल्यूशन होता है हमारा जो डीएनए का, जैसे यहाँ पे हमने डीएनए फाइबर डाली, ये इथेनॉल डाली, और ये कंसनट्रेटेड हमारा डीएनए सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल है वो ऊपर रह जाते हैं, जो प्रेसिपिटेट होते हैं डीएनए के वो हमारे नीचे रह जाते हैं जब हम उसके साथ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अपनाते हैं, ठीक है। तो और इसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर इथेनॉल मिक्स हो गई डाइल्यूट डीएनए सॉल्यूशन के साथ, अगर मान लो मिक्स हो गई, जैसे यहाँ पे ये सेपरेट हो रही है पर मिक्स हो जाती है मान लो, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, और दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा, और उसको एक अप्रोप्रिएट वाटर के वॉल्यूम में उसको डिसोल्व करना पड़ेगा, ताकि हम उसको ईजिली प्योरीफाई कर सकें। Ethanol precipitation has the added advantage of leaving short chain and monomeric nucleic acid compound in solution। तो यहाँ पे जब राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस किए जाएंगे तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हमने यहाँ पे मतलब जो हमारे आरएनए थे और उनको हमने राइबोन्यूक्लियस के थ्रू जब ट्रीट किया था, अगर वो भी यहाँ पे रह जाते हैं तो वो हमारा जो इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड है उसके थ्रू वो प्रेसिपिटेट बन के हमारे इथेनॉल में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है इथेनॉल हमारे न्यूक्लिक एसिड को, तो वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, पूरी तरह से जो इम्प्योरिटियाँ वो दूर हो जाएंगी और पैलेट की फॉर्म में हमारा डीएनए यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप है मेजरमेंट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। इसको कैसे मेज़र करेंगे, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शंस पे, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट के ऊपर वो जो सॉल्यूशन है वो हमने क्यूवेट में रखा है, और वो सॉल्यूशन कितना अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बेस पे हम मेज़र करते हैं कंसंट्रेशन किसके, डीएनए की। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में ही पॉसिबल है। जो अमाउंट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो एब्जॉर्ब की जाएगी यहाँ पे डीएनए सॉल्यूशन के थ्रू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो अमाउंट ऑफ डीएनए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो सैंपल में प्रेजेंट है। यूजुअली ये एब्जॉर्बेंस किस पे मेज़र की जाती है, 260 नैनोमीटर पे मेज़र की जाती है, जिसपे जो वेवलेंथ होती है एक एब्जॉर्बेंस की एट ए हमारा एब्जॉर्बेंस है 260, यहाँ पे हमारे नैनोमीटर को डिनोट कर रहा है, वो होती है हमारी 1.0 कोरस्पॉन्ड टू 50 mg ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ml। 1 ml में जब 50 mg हमारा यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब माइक्रोग्राम जो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा 50, तब हमारी जो एब्जॉर्बेंस है वो कितनी होगी, 1.0।
तो ये ऐसे हम क्या करेंगे, अपनी मेज़र करेंगे कंसंट्रेशन। हम क्या करेंगे, अलग अलग सैंपल रखेंगे क्यूवेट में और देखेंगे, अपनी रीडिंग नोट करेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे एब्जॉर्बेंस का, और वही हमारी जो कितना हमारा mg हमारा डीएनए आया है, एक ग्राफ मिल जाएगा हमें। और हम प्योरिटी, ये तो होगी कंसंट्रेशन की बात की, भी हमने मेज़र कर ली कंसंट्रेशन। अब बात आती है प्योरिटी चेक कैसे करेंगे, जो हमें डीएनए मिला वो प्योर है या नहीं। विद ए प्योर सैंपल ऑफ डीएनए, जो रेशो होता है एब्जॉर्बेंस का अलग अलग नैनोमीटर पे, 260 नैनोमीटर पे एंड 280 नैनोमीटर पे, दोनों का अगर रेशो निकालें, मान लो यहाँ पे 50 mg डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और वो हमने अलग अलग नैनोमीटर पे देखा कि उसकी कितनी एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, 260 पे क्या शो कर रहा है, 280 पे क्या शो कर रहा है। फिर उनका रेशियो निकाला, अगर उनका रेशियो 1.8 आ रहा है तो सैंपल है प्योर। अगर 1.8 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्टामिनेशन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, प्रोटीन के साथ, या तो प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फिनोल प्रेजेंट है या फिर कुछ आरएनए के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे हमारा जो डीएनए है, जब हम उसको निकाल रहे थे तो आरएनए और प्रोटीन हमारा इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट था, बट जो ये आरएनए प्रोटीन थे ये हमारे रिमूव कर दिए गए थे एक फिनोल एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। बट ये जो फिनोल एक्सट्रैक्शन मेथड होता है ना, ये प्लांट सेल पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर कुछ और बायोकेमिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में कुछ और बायोकेमिकल हैं और वो हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेथड डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिनोल एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम प्योर डीएनए को नहीं निकाल सकते अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड, एक नया मेथड यूज़ करना पड़ता है जिसमें हम एक डिटर्जेंट यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं CTAB। ये है हमारा सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, CTAB, जो एक इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ, हमारे न्यूक्लिक एसिड के साथ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट होगी न्यूक्लिक एसिड, CTAB कॉम्प्लेक्स जब भी हमने डाला, क्योंकि ये क्या था, एक हमारा डिटर्जेंट था, ठीक है। तो जब भी हम CTAB सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड को जब भी ऐड करेंगे प्लांट सेल के एक्सट्रैक्ट में, तो क्या बनेगा, हमें न्यूक्लिक एसिड मिल जाए और CTAB कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलग रह जाएगी, जैसे हमें दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो अलग रह गया, न्यूक्लिक एसिड CTAB कॉम्प्लेक्स हमारा नया मतलब नीचे रह गया, पैलेट की फॉर्म में रह गया है। तो जो प्रेसिपिटेट है वो कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू और दोबारा से हम मीडियम को रीसस्पेंड करेंगे 1 मोलर सोडियम क्लोराइड में, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा और जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसको हम फिर इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू कंसंट्रेट कर लेंगे और जो आरएनए है उसको हम राइबोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट के थ्रू अलग कर देंगे डीएनए से। तो यहाँ पे बाकी स्टेप्स तो सेम है बट एक स्टेप अलग है, CTAB ट्रीटमेंट। ये इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ पे और जो इम्प्योरिटी है कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोटीन वगैरह जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है उसको हम अलग कर सकें। बाकी सारे स्टेप वैसे ही चलेंगे जैसे हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। यहाँ पे हम स्टेप क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे, वही जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में किया, कल्चर करेंगे सेल को, ऐसे बैक्टीरिया को जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू पैलेट की फॉर्म में हम अपने प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। फिर हमें सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन करनी होगी, मतलब कि उसको निकालना होगा प्लाज्मिड डीएनए को। फिर प्रोटीन और आरएनए है उसको रिमूव करेंगे और डीएनए को कंसंट्रेट करेंगे इथेनॉल प्रेसिपिटेशन के थ्रू। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम प्लाज्मिड को अलग नहीं निकाल मतलब ग्रो कर सकते, वो बैक्टीरिया के अंदर ही होगा। तो जब हम प्लाज्मिड का डीएनए निकालेंगे तो उसके साथ हमारा बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा प्लाज्मिड के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से। तो यहाँ पे सेवरल फिजिकल डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्लाज्मिड डीएनए के बीच में और बैक्टीरिया डीएनए के बीच में। सबसे पहले तो साइज ही होता है, जो लार्जेस्ट प्लाज्मिड है वो केवल 8% होता है, 8% होता है बैक्टीरिया के ई कोलाई के क्रोमोसोम के साइज़ के। इसका मतलब क्या है कि भाई जो प्लाज्मिड है वो बहुत छोटे छोटे साइज़ का होता है।
और जो टेक्निक यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल को लार्ज वन से, वो प्योरीफाई कर देंगे प्लाज्मिड डीएनए को। साइज़ के अलावा जो प्लाज्मिड और बैक्टीरिया का डीएनए है वो कन्फर्मेशन में भी डिफर करता है। कन्फर्मेशन मतलब कि डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, कोइल्ड है, सर्कुलर है, कैसा है, ठीक है। तो जो टर्म है कन्फर्मेशन, उसका मतलब है स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, कैसे स्पेशली अरेंज हो रहा है, सुपर कोइल्ड है नहीं है। तो दो सिंपलेस्ट कन्फर्मेशन हो सकती हैं, लीनियर हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरिया है क्रोमोसोम आर सर्कुलर, बट जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं सेल एक्सट्रैक्शन, तो जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो टूट जाता है और लीनियर फ्रेगमेंट बनाता है। तो यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम सर्कुलर को लीनियर से अलग कर सकें प्लाज्मिड के डीएनए से। तो देखते हैं यहाँ पे हम जो प्योरीफिकेशन है वो कैसे करेंगे हम डीएनए की, सॉरी बैक्टीरिया की। तो साइज़ के बेस पे देखते हैं कि कैसे हम जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को प्लाज्मिड के क्रोमोसोम से कैसे अलग कर सकते हैं। जब कंट्रोल कंडीशन में हम सेल को लाइज्ड करते हैं, लाइज्ड मतलब उसको तोड़ते हैं और उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल को निकालते हैं, तो मिनिमम अमाउंट में जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोमल डीएनए की बात की गई है वो है हमारा बैक्टीरियल डीएनए, तो उसमें ब्रेकेज आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट आए वो बहुत लार्ज होंगे, मच लार्जर देन द प्लाज्मिड, एंड उनको हम सेल डेब्रिस के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसमें सेल इनवेलप भी अटैच होता है, जिसकी वजह से वो सेडिमेंट की फॉर्म में, जो हमारे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट होंगे वो सेडिमेंट के फॉर्म में हमारे सेल डेब्रिस के साथ अटैच हो जाएंगे और उनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ई कोलाई और उससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज हैं उनमें जब कंट्रोल लाइसिस परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करवाई जाती है ईडीटीए के थ्रू, ईडीटीए एंड लाइसोजाइम के थ्रू, एंड यहाँ पे हमारा सुक्रोज की प्रेजेंस में वो ट्रीटमेंट हो रही है, जो क्या प्रिवेंट करती है, सेल को बर्स्ट आउट नहीं होने देते, मतलब एकदम से टूटने नहीं देते, आराम आराम से वो टूटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फीरोप्लास्ट होते हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे ये स्फीरोप्लास्ट फॉर्म होंगे, स्फीरोप्लास्ट फॉर्म होते हैं। सेल स्फीरोप्लास्ट का मतलब क्या है, स्फीरोप्लास्ट का मतलब है कि वो सेल जिसमें सेल वॉल पार्शली डिग्रेडेड हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कहीं कहीं से वो टूटी हुई है और कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, तो जो यहाँ पे सेल वॉल है वो पार्शली डिग्रेडेड है और वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट है। सेल लाइसिस, अब इसके बाद जब स्फेरोप्लास्ट फॉर्म हो जाता है उसके बाद सेल लाइसिस यहाँ पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ये जो ट्राइटोन X100 है ये क्या है, नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, ये यूज़ किया जाता है। क्यों हम यहाँ पे आयनिक डिटर्जेंट यूज़ क्यों नहीं कर रहे, आयनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल हमारा क्या है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, उसका यूज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो क्रोमोसोम को तोड़ देता है, तो हम यहाँ पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट ट्रिटोन X100 का यूज़ करते हैं। ये इस मेथड के बाद लिटिल ब्रेकेज होता है बैक्टीरिया के डीएनए में, तो सो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो हमें क्लियर लाइसेट दे देती है, यहाँ पे प्लाज्मिड का रह जाता है, सेल डेब्रिस के पास हमारा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट रह जाता है, इस तरह से हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं। यह कन्फर्मेशन के बेस पे हम प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए से कैसे सेपरेट करेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कन्फर्मेशन दोनों की होगी क्या। जैसे हम यहाँ पे प्लाज्मिड के डीएनए की बात करें तो जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है वो सर्कुलर कन्फर्मेशन का होता है और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। तो वो एक हमारी यहाँ पे सुपर कोइल्ड फॉर्म में आ जाता है, एक अलग कन्फर्मेशन ले लेता है सुपर कोइल्ड डीएनए की। सुपर कोइलिंग क्यों होती है, क्योंकि जो डबल हेलिक्स है प्लाज्मिड डीएनए का वो पार्शली अनवोन्ड होता है जब प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेसिस की वजह से वो सुपर कोइल्ड हो गया, तो सुपर कोइल्ड कन्फर्मेशन वो तभी मेंटेन की जा सकती है अगर दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हमारे क्या हो, दोनों ही इंटैक्ट रहें। तो जो मोर टेक्निकल नेम है कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए भी यूज़ किया जाता है सुपर कोइल्ड डीएनए के लिए, CCC डीएनए, मतलब कि कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसके जो दोनों ही एंड है वो इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए सुपर कोइल्ड डीएनए है। और इफ़ वन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, जैसे हम यहाँ पे दो स्ट्रैंड देख रहे हैं पर एक जो स्ट्रैंड है वो निक हो रहा है, उसमें मतलब ब्रेक हो रहा है, डबल हेलिक्स टूट रहा है, तो वो नॉर्मल है रिलैक्स स्टेट में, और एक हमारा यहाँ पे कोल्ड स्टेट में है, एक ने दूसरी
तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा ओपन सर्कुलर स्ट्रक्चर, OC स्ट्रक्चर। तो जो सुपर कोइलिंग है वो इम्पोर्टेंट है प्लाज्मिड की प्रिपरेशन में, बिकॉज सुपर कोइल्ड मोलिक्यूल जो हैं वो ईजिली सेपरेट किए जा सकते हैं ओपन सर्कुलर से। 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड के डीएनए को हमारे बैक्टीरिया के डीएनए से सेपरेट करने के लिए। एक तो होता है हमारा एल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड, और एक होता है हमारा इथिडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो समझते हैं कैसे होता है। एल्कलाइन डीनेचुरेशन जो टेक्निक है वो इस बेस पे मतलब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो नैरो पीएच रेंज होती है जिस पे नॉन सुपर डीएनए जो एक पीएच रेंज होती है, मतलब एक पीएच रेंज जिस पे जो सुपर कोल्ड नहीं होता हमारा डीएनए वो हमारा डीनेचर हो जाता है। डीनेचर होने का मतलब क्या है, उसके दोनों स्ट्रैंड टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर डीएनए, सुपर कोल्ड प्लाज्मिड डीएनए। तो सुपर कोल्ड प्लाज्मिड डीएनए तो एज इट इज़ रहा, पर जो हमारा लीनियर डीएनए है वो pH 12 पे और pH 12.5 पे वो टूट के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा ओपन सर्कुलर डीएनए होगा या बैक्टीरिया का डीएनए होगा वो एक पर्टिकुलर pH पे डीनेचर हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें हम सेल के एक्सट्रैक्ट में, तो क्या होगा, जो पीएच है वो हमारा कितना हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर की होती है, तो वो हमारा कितना होगा pH 12 या 12.5। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगी किसके, ये यहाँ पे जो ऐसे दिखा रखे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हमें पता है A T के साथ 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है, C3 से C G के साथ 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से टूट रहे हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, इस pH की वजह से टूट रहे हैं, तो वो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो ये जो डीनेचर्ड बैक्टीरियल जो हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है वो रीएग्रीगेट हो जाएंगे टेंगल्ड मास में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं टेंगल्ड मास फॉर्म हो गया लीनियर डीएनए का। दिस इनसोल्युबल नेटवर्क कैन बी पैलेट आउट। तो ये जो लीनियर मोलिकुलर पैलेट की फॉर्म में रह जाएंगे और ऊपर सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड रह जाएगा जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इस तरह से दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। इन एडिशनल एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसीजर इज डैट कुछ सर्कमस्टांसिस में, जैसे अगर हमने सेल को यहाँ पे अगर हमने जैसे हमने यहाँ पे ट्राइटोन एक्स के थ्रू उसको तोड़ा था, लाइस आउट किया था, जो कि नॉन आयनिक हमारा डिटर्जेंट था। बट अगर हम यहाँ पे SDS अगर यूज़ कर रहे हैं एंड न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसको सोडियम एसीटेट के थ्रू, अगर हम ट्रिटोन एक्स का यूज़ ना करके सोडियम डोडिसाइल का यूज़ कर रहे हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम एसीटेट का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो प्रोटीन और RNA है वो इनसोल्युबल हो जाएगा और उसको भी हम ऐसे ही अपने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो जो प्योरीफिकेशन है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन की और कोलम क्रोमेटोग्राफी की, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बेस्ट मेथड है एल्कलाइन डीनेचुरेशन। नेक्स्ट है हमारा जो DNA बैंड है उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसको हम फ्लोरेसेंस के थ्रू देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू देख सकते हैं। जो प्योर प्लाज्मिड DNA है उसको हम पंचर से मतलब अपने सिरिंज की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं। और जो इथिडियम ब्रोमाइड बाउंड हो रहा है प्लाज्मिड DNA से, उस प्लाज्मिड के DNA से जो बाउंड हो रहा है इथेनॉल ब्रोमाइड, उसको हम यहाँ पे N-ब्यूटेनॉल से रिमूव करेंगे। और जो सीजियम क्लोराइड रह गया उसको हम डायलिसिस के थ्रू रिमूव करेंगे। डायलिसिस के थ्रू मतलब बफर यूज़ करके और सीजियम क्लोराइड को अलग कर देंगे। तो जो रिजल्टिंग जो प्लाज्मिड प्रिपरेशन होगी वो 100% प्योर होगी यहाँ पे, और उसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन का मतलब है प्लाज्मिड की कॉपी को बढ़ाना, उसके नंबर को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी कॉपी प्लाज्मिड होगा, मतलब मल्टी कॉपी क्या, बहुत सारी कॉपी दिख रही है हमें प्लाज्मिड की एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है प्लाज्मिड के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में। जो बैक्टीरिया होता है ना वो तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के बिना रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसको तो प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, बट जो प्लाज्मिड है उसको जरूरत नहीं होती रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये जो कंट्रास्ट है वो मेजर रोल प्ले करता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये यूटिलाइज की जा सकती है जब हम ग्रोथ करवा रहे हैं बैक्टीरियल कल्चर की फॉर प्लाज्मिड DNA प्योरिफिकेशन। एक टाइम जब हमारा बैक्टीरिया की जो सेल है वो एक सेटिस्फैक्ट्री सेल डेंसिटी पर जब पहुंच जाती है तो हम यहाँ पे एक इनहिबिटर प्रोटीन देते हैं, इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देते हैं, ठीक है, इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एग्जाम्पल है इसका क्लोरामफेनिकोल,
फेनिकोल यूज़ करते हैं हम, वो ऐड किया जाता है और उसको ऐड करके हम उस मीडिया को, उस कल्चर को इंक्यूबेट करते हैं 12 आवर्स के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पे जो प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेट करना कंटिन्यूली रेप्लिकेट करता रहता है, पर जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल है, तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? बैक्टीरिया। बट प्लाज्मिड कर पाएगा, प्लाज्मिड ग्रो कर पाएगा, रेप्लिकेट कर पाएगा। तो प्लाज्मिड की हमें बहुत सारी सेवरल थाउजेंड कॉपी मिल जाएंगी। तो ये जो एप्लीफिकेशन है ये बहुत एफिशिएंट वे होता है मल्टी कॉपी प्लाज्मिड के नंबर को बढ़ाने के लिए, उसकी येल्ड को बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसको क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में आगे यूज़ कर सकें। हमारा थर्ड टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए। देखो, एक यहाँ पर डिफरेंस क्या है डीएनए या मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को प्योरीफाई करने में और प्लाज्मिड के डीएनए को प्योरीफाई करने में, ये है कि जो बैक्टीरियोफेज पार्टिकल है वो लार्ज नंबर में तभी ऑब्टेन किया जा सकता है जब हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से निकालें इन्फेक्टेड बैक्टीरियल कल्चर से, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा। व्हेन सच ए कल्चर इज सेंट्रीफ्यूज्ड कौन सा कल्चर किया जाएगा? ऐसा कल्चर जहां बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो बैक्टीरियोफेज से। तो जो बैक्टीरिया है वो पैलेट आउट कर जाएगा, पैलेट बन जाएंगी हमारी किसकी? बैक्टीरिया की। और फेज पार्टिकल है वो सस्पेंशन मीडियम में रह जाएगा हमारा। तो जो फेज पार्टिकल है उसको हम सस्पेंशन से कलेक्ट कर लेंगे और उसके डीएनए को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे सिंगल डीप्रोटीनाइजेशन स्टेप के थ्रू। मतलब इसकी जो सेल है उसको उसके अराउंड जो फेज होती है हमारी, फेज के अराउंड हमारी प्रोटीन कोट होती है। तो प्रोटीन कोट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डीप्रोटीनाइजेशन करनी पड़ेगी ना। तो उस मेथड के थ्रू हम प्रोटीन कोड को रिमूव कर लेंगे और अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो मेन डिफ़िकल्टी यहाँ पे आती है, स्पेशली लैम्डा फेज अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ग्रो करने में क्या आती है? इस ग्रोइंग एन इन्फेक्टेड कल्चर उस इन सच ए वे डेट एक्स्ट्रा सेलुलर फेज टाइटर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेज पार्टिकल। देखो, जहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया फेज टाइटर का मतलब है नंबर ऑफ फेज, मतलब लैम्डा फेज पार्टिकल डेट आर प्रेजेंट पर ml ऑफ कल्चर, वो हाई होना चाहिए जब हम इसको निकाल रहे हैं। प्रैक्टिकल टर्म में देखें तो जो मैक्सिमम टाइटल है जो रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है फॉर लैम्डा is 10⁻10 per ml, yet 10⁻10 lambda particle will yield only 500 नैनोग्राम ऑफ डीएनए। मतलब अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें तो हम कितना मैक्सिमम टाइटर कितना प्रिपेयर कर सकते हैं लैम्डा फेज का? 10⁻10 लैम्डा फेज पर ml कर सकते हैं। बट जो 10⁻10 लैम्डा फेज पर ml है वो कितना डीएनए हमें देंगी? वो बस हमें 500 नैनोग्राम देंगी। मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वो हमें यहाँ पे क्या दे रही हैं? यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में डीएनए दे रही हैं, ठीक है। तो लार्ज कल्चर वॉल्यूम यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इस रेंज में प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि उनकी रेंज 500 से 1000 ml के बीच में हो, ताकि जब हम सब्सटेंशियल लैम्डा फेज डीएनए को ऑब्टेन कर सकें, ताकि आगे हम उनका क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में यूज़ कर सकें। अब देखो, अब इस चीज़ को कैसे हम सही कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में कैसे हम हाई येल्ड करवा सकते हैं, हाई लैम्डा टाइटर की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो, एक जब हम ग्रो करवा रहे हैं लार्ज वॉल्यूम कल्चर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरिया कल्चर कर जाएगा 100 लीटर तक भी या उससे ज़्यादा भी ऑब्टेन कर जाएगा। बट जो नेचुरली होता है, हमारी जो लैम्डा फेज नेचुरली होती है वो लाइसोजेनिक होती है, लाइसोजेनिक फेज होती है। एंड इन्फेक्टेड कल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ सेल कैरिंग द प्रोफेज इंटीग्रेटेड, मतलब प्रोफेज इंटीग्रेट कर जाएगी बैक्टीरिया के डीएनए में, और बैक्टीरिया के डीएनए में जो एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा लैम्डा टाइटर है वो बहुत लो होगा इन कंडीशन में। तो हाई येल्ड लेने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर लैम्डा की जो कल्चर है वो इंड्यूस्ड करवाना पड़ेगा, सो डैट ऑल द बैक्टीरिया एंटर द लाइटिक फेज, मतलब लाइटिक फेज में एंटर कर जाए और सेल डेथ कर जाए और लैम्डा पार्टिकल हमारा मीडियम में क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। इंडक्शन इज़ नॉर्मली वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, बट बहुत सारी लेबोरेटरी स्ट्रेन में लैम्डा कैरी करता है हमारा, क्या कैरी करता है? टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन, टेम्परेचर सेंसिटिव TS म्यूटेशन कंसिस्ट करता है। और वो म्यूटेशन किस में होती है? CI जीन में होती है,
CI जीन ने। दिस इज़ वन ऑफ द जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है फेज़ को इंटीग्रेटेड स्टेट में मेंटेन करने के लिए। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जो फेज़ का DNA है वो बैक्टीरिया के DNA के साथ इंटीग्रेट होके ही रेप्लिकेट करेगा। इफ़ इनएक्टिवेटेड बाय म्यूटेशन, अगर ये जो CI जीन है वो म्यूटेशन के थ्रू इनएक्टिवेट कर दिया तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, फंक्शनल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइसिस प्रोसेस होगी, लाइसिस होगी, लाइसोजेनिक की बजाय लाइसिस हो जाएगी, लाइटिक साइकिल चलेगी। इन CITS म्यूटेंट्स या म्यूटेशन, जो CI जीन है वो फंक्शनल होता है। वो जो फंक्शनल कितने पे होता है, वो फंक्शनल होता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, एट विच टेम्परेचर नॉर्मल जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो चलेगी, लाइसोजेनिक चलेगी। बट अगर मैं 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दूं तो जो CITS जो जीन प्रोडक्ट है वो वर्क नहीं कर पाएगा और लाइसोजेनी ना होके यहाँ पे लाइटिक साइकिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक कल्चर है ई कोलाई का जिसने लैम्डा फेज के थ्रू इन्फेक्ट कर रखा है, अगर उसमें CITS म्यूटेशन प्रेजेंट है तो मैं उसको 30 से 45 डिग्री सेल्सियस पे कल्चर करके लाइसोजेनिक से लाइटिक में कन्वर्ट कर सकती हूँ और बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करवा सकती हूँ किसकी, लैम्डा फेज की। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अपना, यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लैम्डा प्रोफेज है। अगर 30 डिग्री है तो कोई इंडक्शन नहीं होता, अगर 42 डिग्री सेल्सियस है तो इंडक्शन हो जाता है, एक्साइज लैम्डा जीनोम जो है वो यहाँ पे आ जाता है, सेलाइसिस हो जाता है, नई लैम्डा पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नॉन लाइसोजेनिक लैम्डा फेजेस। देखो लैम्डा स्ट्रेन्स वैसे तो क्या होते हैं, नेचुरली लाइसोजेनिक होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे क्लोनिंग वेक्टर हैं जो लैम्डा को मॉडिफाई करके डिराइव किए जाते हैं, जिसमें हम CI जीन को या तो डिलीट कर देते हैं या फिर अदर ऐसे जीन को डिलीट कर देते हैं जो लाइसोजेनिक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लाइसोजेनिक कभी भी ओक्योर नहीं हो पाती। तो ये जो फेज़ है ये इंटीग्रेट नहीं कर पाती बैक्टीरिया के जीनोम में। तो ये उनको कैसे इन्फेक्ट कर सकती हैं, केवल और केवल लाइटिक सेल के थ्रू इन्फेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो विद दिस फेज द की टू ऑब्टेन ए हाई टाइटर लाइज इन द वे कि वो कैसे कल्चर में ग्रो करेंगी। इन पर्टिकुलर स्टेज एट विच सेल्स आर इन्फेक्टेड बाय एडिंग फेज पार्टिकल, अगर फेज ऐड करी गई है सेल के डिवाइड होने से पहले, फेज के डिवाइड होने से पहले, तो क्या होगा, तो जो हमारी सेल के डिवाइड होने से अगर पहले ऐड कर दी गई है, मतलब अगर वो मैक्सिमम रेट पे डिवाइड नहीं की है, इफ फेज आर एडिड बिफोर द सेल्स आर डिवाइडिंग एट देयर मैक्सिमम रेट, तो जो सेल्स हैं वो बहुत ही क्विकली लाइस्ड आउट होंगी और लो टाइटर देंगी हमें। ठीक है, लो फेज टाइटर आ जाएगा। बट अगर हमने कल्चर डेंसिटी टू हाई थी, ठीक है, और सेल डेंसिटी टू हाई थी और जो फेज ऐड करेगी तब कल्चर हमारा कंप्लीटली लॉस आउट नहीं हुआ, तो जो फेज टाइटर होगा वो भी लो होगा। बट अगर जो कल्चर डेंसिटी थी हमारी वो आइडियल थी और जो साइज था फेज का वो इनोक्यूलम था और बैलेंस था, तो कल्चर हमारा कंटिन्यू करेगा ग्रो करना। बट इवेंचुअली सारी सेल्स इन्फेक्टेड हो जाएंगी और सेल लाइस आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हमें हाई फेज टाइटर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हम कलेक्शन कैसे करेंगे फेज़ के एक इन्फेक्टेड कल्चर से। तो जो फेज़ पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं पेलेट आउट करने, तो उनको हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। जब हम कलेक्शन करते हैं फेज़ का तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करके किया जाता है, और वो प्रेसिपिटेट हम किसके साथ बनाते हैं, PEG के। PEG क्या है, हमारी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, इसके साथ हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं। दिस इज लॉन्ग चेन पॉलीमर कंपाउंड विच इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट हमने सोडियम क्लोराइड लिया, कॉमन सॉल्ट लिया है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, PEG। तो ये क्या करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी असेंबली करता है सच एज फेज पार्टिकल टू प्रेसिपिटेट आउट, ताकि हमारे जो प्रेसिपिटेट हैं वो हो जाए हमारे क्या, फेज पार्टिकल्स। फिर जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो पैलेट बनेगी फेज पार्टिकल की और सेल डेब्रिस की। फिर हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा रीडिजोल्व करेंगे स्मॉल वॉल्यूम में और हमारे रीसस्पेंड करेंगे पैलेट में और अपने फेज पार्टिकल रिमूव कर देंगे। हमने पढ़ा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रीडिजोल्व जो पैग है, रीडिजोल्व पैग क्या था हमारा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पैग के साथ जो रीडिजोल्व जो हमने किया उस टाइम पे हमारा जो फेज लैम्डा फेज होगा
वो डीप्रोटीनाइजेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कभी कभी लैम्डा फेज को प्योरीफाई करने के लिए इंटरमीडिएट प्योरीफिकेशन स्टेप अप्लाई करना पड़ता है, जो कि इस फोटो में आप देख सकते हो। क्यों ये नेसेसरी होता है? क्योंकि जो पैग प्रेसिपिटेट है उसमें कुछ अमाउंट हो जाती है बैक्टीरियल डेब्रीज की, जिसमें अनवांटेड सेलुलर डीएनए होगा बैक्टीरिया का। तो ये जो कंटामिनेंट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए लैम्डा फेज से हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं, जिसपे बायोन डेंसिटी के थ्रू हम अलग अलग जो हमारा जेनेटिक मटेरियल उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लैम्डा पार्टिकल बैंड है वो सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट शो करेगा 1.45 से 1.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हम ग्रेडियंट से विड्रॉ कर सकते हैं प्रिसाइजली, क्योंकि वो एक बैंड फॉर्म कर देगा जहाँ पे उसकी डेंसिटी लाई करेगी। और जो सीजियम क्लोराइड है फिर हम सेम मेथड से डायलिसिस के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे फेज से, और हमारा जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, या तो फिनोल या फिर प्रोटीएज ट्रीटमेंट के थ्रू। प्रोटीएज और फिनोल ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फेज होता है, फेज के अराउंड एक कोट होता है, वो कोट किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो उस प्रोटीन कोट को डिसोल्व करने के लिए या तो हमें फिनोल एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, प्रोटीएज ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। प्रोटीएज क्या है? वो एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड कर दे। देखते हैं M13 को हम क्यों एडवांटेज देते हैं बायोलॉजिस्ट ओवर लैम्डा फेज प्योरीफिकेशन। बहुत सारा डिफरेंस है M13 के बीच में एंड लैम्डा इन्फेक्शन साइकिल के बीच में, जिसकी वजह से एडवांटेज दी जाती है M13 को। पहली तो ये कि जो डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म होती है, डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म किसकी? M13 की, जो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और ये बहुत ईजिली प्योरीफाई की जाती है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू, प्लाज्मिड प्रिपरेशन के थ्रू। जैसे प्लाज्मिड की प्रिपरेशन की जाती है वैसे इसकी की जा सकती है। ये सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है उस सेल से जो सेल इन्फेक्ट कर दी गई हो M13 के थ्रू, एंड जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है वो सेपरेट की जाती है उस डीएनए से। वो डीएनए क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कौन करेगा? M13। तो बैक्टीरिया की सेल से हम एक्सट्रैक्ट किसको करेंगे? M13 को। तो यहाँ पे हम उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं सीजियम क्लोराइड इथिलियम ब्रोमाइड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करके। ईजिली हम M13 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर भी जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है M13 जीनोम की, उनमें क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट जो बिग एडवांटेज यहाँ पे M13 की है ओवर लैम्डा इज दिस कि भाई हाई टाइटर प्रोड्यूस करते हैं, हाई टाइटर मिलते हैं किसके? M13 के। वो ईजिली ऑब्टेन हो जाते हैं। जैसे कि इन्फेक्टेड सेल है वो कॉन्टीन्यूसली सिक्रेट करती रहती है M13 पार्टिकल्स को मीडियम में, विद लाइसिस never occurring, a high M13 titer is achieved by simply growing the infected culture to a high सेल डेंसिटी। मतलब कोई भी लाइसिस नहीं होगा, बट अगर हम बैक्टीरिया की हाई डेंसिटी प्रोड्यूस कर दें तो हमें हाई कॉपी मिल जाएंगे, हाई टाइटर मिल जाएंगे M13 के। तो ये एक एडवांटेज है। इनफैक्ट जो टाइटर होते हैं अबाउट 10⁻12 पर ml और इससे ज़्यादा, वो ईजिली ऑब्टेन किए जा सकते हैं बिना किसी स्पेशल ट्रिक के। जैसे लैम्डा फेज में हमें ट्रिक यूज़ करनी पड़ रही थी, पर यहाँ पे बिना किसी स्पेशल ट्रिक के हम 10⁻12 पर ml टाइटर M13 के ईजिली ले सकते हैं। ऐसे हाई टाइटर का मतलब है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट सिंगल स्टैंडर्ड M13 डीएनए की प्रिपेयर की जा सकती है 5 ml और इससे भी कम के वॉल्यूम में, कल्चर वॉल्यूम में। और जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो लाइस नहीं होती, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे सेल डेब्रीज की, कि कहीं सेल डेब्रीज कॉन्टामिनेट ना कर दे फेज सस्पेंशन को। जब सेल लाइसिस ही नहीं हो रही तो कोई भी कॉन्टामिनेशन का डर नहीं होगा। तो जो सीजियम क्लोराइड वाला जो सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वाला स्टेप है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी M13 में, जिसकी जरूरत किस में पड़ रही थी? लैम्डा फेज में। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड M13 होता है उसकी प्रिपरेशन इन्वॉल्व करती है ग्रोथ ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इन्फेक्टेड कल्चर एंड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ the culture to pellet the bacteria or to remove the bacterial cell, and then precipitation of the phase particle with bag
टू ताकि जो फेज़ है वो सस्पेंशन मीडियम में आ जाए और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। एंड फिनोल एक्सट्रैक्शन, फिर रीसस्पेंड करेंगे पेलेट को, फिर उसमें फिनोल एक्सट्रैक्शन करेंगे ताकि जो प्रोटीन कोट होता है M13 के आउटवर्ड साइड में फेज़ के अंदर वो रिमूव हो जाए। फिर उसको रिमूव करेंगे एक्वस लेयर में, ऐड करेंगे इथेनॉल, सेंट्रीफ्यूज और रीसस्पेंड करेंगे M13 DNA को स्मॉल वॉल्यूम में, और हमारा जो M13 है वो ईजिली हमारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा।